So let me start with the, I have already explained you the balance sheet working capital. Balance sheet working capital means the working capital which is calculated from the balance sheet given, closing balance sheet of the accounting concern. It is calculated by deducting current liabilities from the current asset. And then we have cash working capital. We have cash working capital. Now, what do you mean by cash working capital? Cash working capital means from the current assets. We calculate from the current assets those only those portion of the current asset which has cash, on the basis of the cash, that is we do not include the profit margin included in the debtors में जो profit margin है वो उसको हम include नहीं करते. क्यों? Because ये प्रॉफिट तो हमें जब डेटर्स पैसा हाथ में देंगे तब मिलेगा. Now till now that profit we have not received. So we value our debtors at cost, because that profit we will receive in the future when debtors will give the money. जब डेटर पैसा देंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रॉफिट भी हमारे हाथ में आएगा. नॉर्मली सी वी फॉलो कंजर्वेटिव अप्रोच इन अकाउंट्स. द प्रॉफिट्स वी रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट कम्स टू अवर हैंड. बिफोर दैट टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट इज नॉट सेफ, बिकॉज पैसा कल डेटर्स देंगे नहीं देंगे इज अ क्वेश्चन मार्क. एंड इन द while calculating the stock, we sometimes even the depreciation is included, which actually should not be included when we consider cash working capital, because depreciation, as we know, is a non-cash expense. Depreciation जब हम calculate करते हैं तब money does not goes out. Depreciation is a non-cash expense, correct? Depreciation मतलब हम assume करते हैं कि asset का इतना value कम हो गया. So therefore, while calculating cash working capital, we do not consider the non-cash portion included in the working capital. Then lastly, we have positive and negative working capital. Positive working capital means the answer what we get when we from the current asset, means positive working capital means the value of current asset is more compared to the current liability. तब हमें वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव मिलेगा. मतलब करंट असेट जो है वो करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है. current asset is more compared to the current liability. We say positive working capital. If current liability is higher as compared to the current asset, if the current liability is more as compared to the current asset, अगर current liability ज्यादा है as compared to the current asset, we say it is negative working capital. समझा? Positive working capital मतलब current asset ज्यादा है current liability से. Negative working capital मतलब current asset कम है. Current asset is less as compared to current liability. Positive means what? Current asset is higher, मतलब asset ज़्यादा है, current asset ज़्यादा है. And negative working capital means current asset कम है. Current asset कम है as compared to current liability. Now what is, see, working capital का meaning ही है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. अब हम लोग कब से करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी ये वर्ड सुन रहे हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट अस सी
what is current asset. Let us see what is current asset and what is current liabilities. So current asset क्या है and current liability क्या है, let us see in this slide. सबसे पहले current asset, as I told you, current assets are the assets which are in the business for a shorter period of time. For example, stock. Stock are the goods in which the business deals. So it can be, stock can be in the form of raw material, stock can be in the form of finished goods, stock can be in the form of WIP. Now, what do you mean by WIP? WIP means work in progress, means the raw material has to be converted into finished goods. Material हम production में use करते हैं and उसको convert करते हैं into finished goods which are sold in the market. But in between, when the raw material are bought into production, in the during the course of production, the मतलब जब रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो जो मिडल का stage hai, the stage when the raw material has been put into production and the production is being carrying on, that stage is of the stock is known as work in progress, means incomplete production. This is that stage when the stock is not completed to sell in the market. So stock का 3 stages है. पहला stage is known as raw material, second stage is known as finished goods, थर्ड स्टेज इज नोन एज WIP. लेकिन अगर ऐसा देखें ना तो पहले गुड्स रॉ मटेरियल के रूप में रहता है, जब उसमें काम चल रहा रहता है तो वो WIP हो जाता है, एंड जब उसमें काम कंप्लीट हो जाता है, इट्स रेडी टू सेल इन द ओपन मार्केट, इट इज नोन एज फिनिश्ड गुड्स. That is known as stock, and stock is a current asset because stock is for sale. तो आज गुड्स सेल हो गया तो वो असेट में नहीं लिखेंगे हम. तो स्टॉक इज ऑलवेज सर्क्यूलेटिंग, वो कभी भी क्या होता रहता है, घूमता रहता है. फ्रॉम वी परचेस इट और वी मैन्युफैक्चर इट एंड वी सेल इट. हमारे पास वो रहता नहीं है, वो घूमता रहता है. So it is not there in the business for longer period of time. And then we have debtors. Who are the debtors? Debtors are our customers to whom we sell goods on credit. Debtors are our customers to whom we sell goods on credit. So जब हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, उधार में सेल करते हैं, तो जिनको उधार में सेल करते हैं गुड्स, उनको हम बोलते हैं डेटर्स, और अवर कस्टमर्स whom the goods are sold on credit. Then we have our prepaid expenses, मतलब those expenses whose payment has been done in advance. मतलब हमने अगर रेंट अगर हमारे लिए एक्सपेंस है, अगर हमने नेक्स्ट ईयर का भी रेंट अभी से पे कर दिया है, तो दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. अब हम एक बार एडवांस में एक्सपेंस पे करेंगे तो दोबारा वी विल नॉट पे. Once we have paid the expense in advance, now we will only take the benefit of the service. So prepaid expenses are expenses paid in advance. These are also current asset. And सबसे important current asset is cash and bank balances. मतलब कैश बैलेंस आज हमारे पास है, कल यूज्ड हो जाएगा, आते जाते रहेगा. कैश एंड बैंक balances will be coming in the business and going out.
So the assets which are there in the business for shorter period of time are known as current asset, are known as current asset which are in the business for shorter period of time. So any confusion in current assets? Now let us discuss current liabilities. So current liabilities are those liabilities which are paid in shorter period of time. मतलब are repaid short in a short span of time, short period, in a short period of time. So current liabilities are those uh, payments which we make in a shorter period of time. मतलब हम ये payments को जल्दी जल्दी कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अवर क्रेडिटर्स. हु आर अवर क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स आर दोज पीपल फ्रॉम whom वी टेक क्रेडिट. जिनसे हम लोग उधार लेते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स हैं. जनरली हम क्रेडिटर से क्या लेते हैं? हम क्रेडिटर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं या हम कुछ एक्सपेंसेस उनसे, लाइक वी क्रेडिटर्स विल बी लाइक क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. कुछ एक्सपेंसेस हमने किया, उनसे एक्सपेंसेस हैं जिसका हमने पेमेंट नहीं किया. देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस फॉर विच द पेमेंट इज पेंडिंग, is known as creditor for expenses. मतलब ये expenses का हमने पेमेंट नहीं किया. या तो creditors are those suppliers who supply material to the business on credit. क्रेडिट मतलब उधार पे. तो इनको तो हम इनका पैसा जल्दी जैसे होता है वैसे चुकाते रहेंगे. तो current liabilities are those payments which we make in a short period of time. So in current liabilities, in what things are included? Creditors, bills payable. Now what do you mean by bills payable? Bills payable are the documents, legal documents in which we show the period when the payment will be made to our creditors. Normally the creditors only are converted into bills payable. मतलब creditors को अगर ज़्यादा वो लोग चाहते हैं कि एक डेट हम दे कि वो डेट पे उनका पैसा उनको हम चुकाएंगे, तो हम उनको एक डॉक्यूमेंट में लिख के साइन करके देंगे कि ये डेट को वी विल बी पेइंग देयर मनी. तो that document is known as bills payable. So bills payable का ऑपोजिट होता है बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल इज अ करंट असेट. तो अगर हम डेटर्स को हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब डेटर्स हमें कब पैसा चुकाएंगे हमें नहीं मालूम, चुकाएंगे ये पता है, बट एग्जैक्टली कौन से डेट पे चुकाएंगे वो नहीं पता है. वी वांट टू बी मोर श्योर that when the payment will be received from our debtors, we make them sign a document in which they mention कि वो कौन से डेट में पैसा चुकाएंगे. तो उसको हम लोग बोलते हैं that the document which is signed by the debtor, that document is known as bills of exchange. और वो डॉक्यूमेंट जिसमें डेटर ने साइन किया ये डेट को पैसा चुकाएंगे, तो दैट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल. और हम हमारे क्रेडिटर्स को साइन करके देते हैं कि ये डेट को हम पैसा चुका देंगे आपका, तो दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल्स पेएबल. देन वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, विच आर पेंडिंग. तो ये एक्सपेंसेस हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी
सैलरी हमने पे नहीं किया, इट इज आउटस्टैंडिंग, तो हम कभी तो जल्दी सैलरी है तो हम ज्यादा डिले नहीं कर सकते, otherwise our employees will run away. So that outstanding expenses are expenses which are paid in a shorter period of time, मतलब हम ज़्यादा delay नहीं करते, तो those expenses are known as outstanding expenses or expenses which are pending. तो पेंडिंग है तो पे करना पड़ेगा. That is also an example of current liability. Then we have advance from customers. Sometimes what we do, हम हमारे डेटर्स को, कस्टमर्स मतलब हमारे डेटर्स या हम जिनको हम सेल करते हैं, सेल्स करते हैं, आर अवर कस्टमर्स, तो ये कस्टमर्स से हम कभी कभी डेटर को तो उधार पे सेल करते हैं, बट कस्टमर्स जिनसे हम एडवांस में पैसा लेते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि तुमको अगर माल चाहिए, अगर इफ यू वांट द गुड्स यू हैव टू मेक अ एडवांस पेमेंट, मतलब गुड्स अभी तक सेल नहीं किया और हमने एडवांस में उनसे पैसे ले लिया, तो दैट बिकम्स व्हाट, प्रीपेड. हमने क्या किया, प्रीपेड इनकम ले लिया, इनकम एडवांस में ले लिया. इनकम जो है, बिकॉज हमारे लिए सेल्स इज अ इनकम, बट हमने गुड्स अभी तक सेल नहीं किया. गुड्स सेल करने के बाद पैसा आया तो अलग बात है, बट अभी तक हमने गुड्स सेल नहीं किया और एडवांस में कस्टमर से पैसा लिया, तो इट इज अ करंट लाइबिलिटी. इट इज अ करंट लाइबिलिटी. Then lastly, we have bank overdraft. We have bank overdraft. What is bank overdraft? When we are doing business, we normally we have a current bank account. We open a current account with the bank, and current account gives a special, current account has one special feature known as bank overdraft. Matlab it is similar to a short term loan which bank will give you against your current account. आप अगर करंट अकाउंट होल्डर हो, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, if you are doing business, so generally you will have a current account. So that current account has a unique feature, of bank overdraft facility. मतलब against current account you get the bank overdraft facility, and this bank overdraft is nothing but a short term loan which is given against current account, which you have to pay in a short, because it's a short term loan. और करंट अकाउंट में क्या होता है, पैसे आते रहते एंड जाते रहते, बिकॉज जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स आपको पेमेंट्स करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, एंड जैसे आप अपने क्लाइंट्स को, सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को पे करोगे तो अकाउंट में से पैसे जाएगा, तो देयर विल बी इनफ्लो एंड आउटफ्लो रेगुलरली इन द करंट अकाउंट. सो कभी बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हुए भी आपका चेक क्लियर कर दिया, तो इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन बाय बैंक. इट इज नथिंग बट similar to a short term loan. Now we will go to, I hope current liability also is clear. Now we will go to the next slide. Now see, in this chapter what we will be doing is, हमें क्या करना रहता है, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करने से वर्किंग कैपिटल मिलता है. वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है हमें, करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करने पे, करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करने से हमें क्या मिलता है, वी गेट द
वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में हमें करंट असेट भी डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, हमें करंट असेट को कैलकुलेट करना रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एंड हमें करंट लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो इंफॉर्मेशन के बेसिस में व्हाट वी विल बी डूइंग, we will be calculating current asset and we will be calculating करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट भी हम कैलकुलेट करेंगे एंड करंट लाइबिलिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप इसका अगर चाहिए तो आप लिख के भी ले सकते हो, या तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर नाउ एंड राइट डाउन दिस लेटर ऑन आप आपके बुक में इसको कॉपी कर लो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरा हमारा चैप्टर जो है विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड होगा। अगर, और ये बहुत इजी है, see you, it is very easy. Just what you have to do, pay attention now. We have estimating current asset. Estimating means calculating current asset. सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। Now, what do you mean by raw material? Raw material is the material which is used for the purpose of production. So, इसको हम कैलकुलेट करते हैं by the value of raw material, which is always given in the question. रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, मतलब, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हम मटेरियल कितने महीने का रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करते हैं। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, when for example your mother or someone in the family who looks after the groceries के ऊपर कौन ध्यान देता है? नॉर्मली it will be your mother, it will be your mom who will be looking after the purchase of groceries. तो यहाँ पे बिजनेस में क्या जरूरी होता है प्रोडक्शन करने के लिए? रॉ मटेरियल। इफ यू आर अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका मटेरियल। बिकॉज मटेरियल को यूज़ करके ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो वो मटेरियल आप कितने पीरियड के लिए परचेज करोगे, मतलब कितने पीरियड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करोगे? 1 मंथ का रिक्वायरमेंट, दैट डिपेंड्स आपके पास कितना जगह है ये मटेरियल को स्टॉक करने के लिए, मटेरियल को रखने के लिए आपके पास कितना स्पेस है, आप उसके हिसाब से यू विल बी परचेसिंग द रॉ मटेरियल। सपोज आई परचेज द रॉ मटेरियल फॉर द 1 मंथ, रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ, मतलब 1 मंथ के लिए जितना भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है मैंने उतना परचेज किया। तो एक क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल बी गिवन, उसको जैसे मटेरियल का कॉस्ट है सपोज 10 रुपीज एक यूनिट का, तो उसके हिसाब से कितना मंथ का हम मटेरियल परचेज करेंगे, दैट विल बी given in the question. How many months material do we purchase and keep? और कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें कितना मटेरियल चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमेशा मटेरियल जो है हम किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। रॉ मटेरियल हम किसके ऊपर वैल्यू करते हैं? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बाद देयर इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ
work in progress. Now, what is work in progress? I told you earlier also. Work in progress means incomplete production, means ongoing production of goods. When the goods are in the stage of production, not the production is not completed yet, it is known as work in progress. Normally हम क्या मानते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल तो पूरा यूज हो गया होगा, क्योंकि मटेरियल को तो हम यूज कर लेते हैं, पर मटेरियल तो पूरा यूज हो गया है, पर वर्कर्स ने, लेबरर्स का और अदर एडिशनल ओवरहेड, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू मेक अ फर्नीचर, इफ आई वांट टू मेक अ वुडन फर्नीचर, तो व्हाट विल बी द रॉ मटेरियल फॉर मी? अगर मुझे वुडन फर्नीचर बनाना है तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा? वुडन फर्नीचर बनाने के लिए वुड, करेक्ट। सो वुड इज द रॉ मटेरियल फॉर मी। तो मैं फर्नीचर बनाते वक्त वुड तो जितना चाहिए एक फर्नीचर बनाने के लिए मैं यूज कर लूंगी, बट वुड अभी तक फर्नीचर में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि कारपेंटर ने अपना पूरा काम अभी तक किया नहीं है, लेबरर ने अपना पूरा काम 100% वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया, और जो एडिशनल कॉस्ट है, जैसे फर्नीचर से वुड बनता है एंड देन वी रिक्वायर सम what you say, some polish, some paint, etc. to make the furniture into complete, make the wood into furniture, convert the wood into furniture. सिर्फ कारपेंटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेबरर की जरूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगता है, जैसे पॉलिश पेपर चाहिए, या फिर हमें कुछ आयरन नेल्स चाहिए, या तो हमें कुछ पेंट चाहिए, तो ये सब चीजें भी रिक्वायर्ड होता है अलोंग विद कारपेंटर, लेबरर। तो हम क्या मानते हैं, वुड का तो पूरा 100% काम हो गया, बट वेजेस एंड ओवरहेड, ओवरहेड्स मीन्स एडिशनल कॉस्ट, इसका 100% नहीं, हम अज्यूम करते हैं ओनली 50% काम हुआ है, दैट इज अवर अजम्पशन, अनलेस समथिंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोला है 40% काम हुआ है, वेजेस का 40% एंड ओवरहेड्स का भी 40% काम हुआ है, तो हम वो परसेंटेज लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है वेजेस का 60% हुआ है, ओवरहेड्स का 50% काम हुआ है, तो हम वो एक इंफॉर्मेशन लेंगे। बट इफ नथिंग इज टोल्ड इन द क्वेश्चन, WIP कैलकुलेट करते वक्त वी विल अज्यूम मटेरियल का 100%, लेबर और ओवरहेड, लेबर को वेजेस भी बोल सकते हैं, बिकॉज लेबरर को क्या देते हैं हम, वेजेस देते हैं, तो वेजेस एंड ओवरहेड्स का सिर्फ 50% काम ही हुआ है, तो 50% लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू कन्वर्ट, सपोज फ्रॉम द वुड इनटू फर्नीचर 4 days are required. 4 days is the processing period of wood into furniture. तो processing period मतलब क्या होता है, processing period मतलब WIP, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए हाउ मच पीरियड इज रिक्वायर्ड, दैट पीरियड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, तो दैट वी विल बी यूजिंग। एंड see, everything will be given, but we only have to remember कि WIP के लिए हमें कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वेजेस चाहिए, ओवरहेड्स चाहिए, एंड इनको प्रोसेसिंग टाइम इनका कितना है वो चाहिए, एंड दैट एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
मतलब ये फिनिश्ड गुड्स हमारे पास कितना दिन स्टॉक में रहता है, मींस हाउ मच पीरियड इज रिक्वायर्ड टू सेल दिस फिनिश्ड गुड्स इन द मार्केट। आज हमने ये गुड्स को प्रोड्यूस किया तो क्या आज ही हम सेल करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन 1 month पीरियड, 2 month पीरियड, तो हम लोग अकॉर्डिंगली उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन फिनिश गुड्स को हम किस में वैल्यू करते हैं? फिनिश गुड्स मतलब क्या? फिनिश गुड्स मतलब क्या? इस फिनिश गुड्स में मटेरियल का पूरा 100% काम हो गया, वेजस ने भी, लेबर ने भी, कारपेंटर ने भी वुड का अपना पूरा काम कर लिया, फर्नीचर बना दिया, एंड ओवरहेड्स का भी पूरा 100% काम हो गया। मतलब व्हेन फिनिश गुड्स आर दोज गुड्स ऑन which are ready to sell in the market. Finished goods are those goods which are ready to be sold in the market. So finished goods are valued at total cost. Finished goods are valued at total cost. Total cost मतलब क्या होता है? Material cost plus wages cost plus overhead cost is equal to total cost. Total cost मतलब क्या? टोटल कॉस्ट मीन्स मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस कॉस्ट को लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, प्लस ओवरहेड कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है टोटल कॉस्ट। तो फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू करते हैं? टोटल कॉस्ट में, एंड मल्टीप्लाई करते हैं इनटू नंबर ऑफ मंथ्स फिनिश गुड्स टू रिक्वायर टू बी स्टोर्ड। कितना महीना या कितना दिन हम फिनिश, see this cannot be in months, कभी कभी क्वेश्चन में they may give in days also, they may give in weeks also, so it depends upon question to question कि कितना वो लोग ने कैसे इंफॉर्मेशन दिया है, तो अकॉर्डिंगली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिनिश गुड्स को कैसे वैल्यू करते हैं? टोटल कॉस्ट में और मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया तो टोटल कॉस्ट कैसे वैल्यू करते हैं? मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट टोटल कॉस्ट। सी नाउ दिस इज जस्ट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर, ऑटोमेटिकली यू विल बी क्लियर कि ये सब कुछ क्या है। जब हम प्रैक्टिकली सम्स करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होगा तुम लोग को। टुडे इट इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन, व्हेन वी विल स्टार्ट विद द सम्स इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद वी हैव करंट असेट में डेटर्स भी होते हैं। करंट असेट में वी हैव डेटर्स ऑल्सो। सो डेटर्स को कैसे वैल्यू करना है? डेटर्स आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट और एट सेलिंग प्राइस। हम दोनों को करेक्ट मानते। पहले तो बताओ डेटर्स कौन है? डेटर्स आर अवर कस्टमर्स whom we have sold on credit, whom we have sold on क्रेडिट। मतलब इनको हम लोग उधार में गुड्स सेल करते हैं। तो डेटर्स को हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एक तो वी कैन कैलकुलेट ऑन टोटल कॉस्ट, या तो वी कैन कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब डेटर्स कौन है? जिनको हमने सेल्स किया है, तो सेल्स में भी वैल्यू कर सकते। सेलिंग प्राइस मीन सेल्स में भी वैल्यू कर सकते हैं, या तो हम वैल्यू कर सकते हैं ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? टेल मी, विल एनी मैन्युफैक्चरर, विल एनी सेलर सेल द गुड्स एट टोटल कॉस्ट? अगर मैं सपोज डस्टर मैन्युफैक्चर करती हूँ, सपोज आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ डस्टर, जो ब्लैक बोर्ड यूज रब करने के लिए यूज होता है, डस्टर।
इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ डस्टर, तो मेरा डस्टर सपोज 10 रुपीज में बन के आता है, टोटल कॉस्ट इज 10 रुपीज, तो क्या मैं 10 रुपीज में ही सेल करूंगी? Will I sell the duster at 10 rupees if the total cost of the duster is 10 rupees? Will any seller in this world sell the goods at total cost? आप कोई शॉप में जाते हो और आप कुछ खरीदने जाते हो जैसे, और वो सेलर आपको बोलता है कि ये इतना ही तो मैंने इतने में तो खरीदा है, तो वो हमेशा सच बोलता है क्या? जितने में खरीदा उतने में कोई सेल करता है? इज देयर एनी वन इन दिस वर्ल्ड हु विल सेल द गुड्स एट कॉस्ट, मतलब जितने में मैंने परचेस किया, मैं अगर बिजनेस करने के लिए बैठी हूँ तो क्या मैं उतने में ही आपको सेल करूंगी जितने में मैंने खरीदा है? देन व्हाई शुड आई डू द बिजनेस? Everyone will add profit and sell, correct? Every seller who is there here to do business will never sell the goods at total cost. He will always add margin, he will add profit. Margin मतलब profit, profit add करके ही sell करेगा। तो दैट प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो हमें प्राइस मिलता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो डेटर्स को आप, कस्टमर्स को आप टोटल कॉस्ट में वैल्यू कर सकते हो तो भी करेक्ट है, पर आपको लिखना पड़ेगा कि यू हैव वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, डेटर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, ऐसे आपको नीचे एडिशनल नोट में आपको लिखना पड़ेगा, या तो जहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हो वहीं पे लिखना पड़ेगा वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। नहीं तो नॉर्मली हम डेटर को सेलिंग प्राइस में वैल्यू करते हैं, because when we are selling goods to someone it will be at selling price, selling price में सेल करेंगे। बट एज पर द कंजर्वेटिव कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स ना, डेटर ने अभी तक पैसा चुकाया नहीं है, कल चुकाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए डेटर्स को क्या करते, कॉस्ट में भी वैल्यू करने को सही ही मानते हैं। तो अगर कुछ लोग एग्जाम में टोटल कॉस्ट में वैल्यू करेंगे डेटर को और कुछ लोग सेलिंग प्राइस में, तो दोनों को करेक्ट आंसर करेक्ट ही मिलेगा, बिकॉज बोथ द कंसेप्ट्स आर करेक्ट। भले फाइनल आंसर विल बी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम, बट दोनों को रॉन्ग नहीं बोल सकते, बिकॉज दोनों तरीके से डेटर को वैल्यू करते हैं। टोटल कॉस्ट में भी करे तो सही है एज पर कंजर्वेटिव कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, एंड सेलिंग प्राइस में करे तो भी करेक्ट है। समझा? दोनों में डेटर्स को कैलकुलेट करेंगे तो चलेगा। क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेटर्स को, क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं सारे करंट असेट को? क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है, और वर्किंग कैपिटल के लिए हमें करंट असेट चाहिए, इसलिए हम करंट असेट कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमें करंट लाइबिलिटी भी चाहिए, तो हम करंट लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करते हैं। फिर करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट वर्किंग कैपिटल, फिर हमारा सम हो जाएगा। तो और यहाँ पे देखो क्रेडिट पीरियड अलाउड करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस क्रेडिट पीरियड अलाउड? ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। दिस इज दैट उधार गिवन मीन्स हम लोग देते हैं ना, डेटर को 1 महीने का उधार देते हैं, 10 दिन का उधार देते हैं, 2 महीने का उधार देते हैं, दैट इज नोन एज क्रेडिट पीरियड अलाउड, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो वो करने से हमें डेटर का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंस। तो जो भी एक्सपेंस हमने प्रीपेड में पे किया, प्रीपेड में मतलब एडवांस में पे किया, इनटू कितना पीरियड एडवांस किया, 1 महीना एडवांस में पे किया तो 1 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 महीना एडवांस में पे किया तो 2 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पर्टिकुलर एक्सपेंस जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना भी हमने एडवांस, जितना भी पीरियड का हमने एडवांस पेमेंट किया तो हमें प्रीपेड एक्सपेंस मिल जाएगा। कैश बैंक बैलेंस नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्टली उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस नहीं दिया तो कैसे कैलकुलेट करना है, कौन से बेसिस में कैलकुलेट करना है, विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो नो नीड टू वरी। सो इतना करेंगे तो हमें करंट असेट सारे मिल जाएंगे। स्टॉक 3 टाइप्स का कैलकुलेट करना है, फिर डेटर
फिर प्रीपेड एक्सपेंस, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस नॉर्मली विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ व्हाट वी विल डू, we will go to the next slide. This is the last slide. 1 minute. So the last slide. So estimating current liabilities. नाउ जैसे हमने करंट असेट को वैल्यू किया, वैसे ही वी विल हैव टू वैल्यू द करंट लाइबिलिटीज. तो करंट लाइबिलिटीज में जनरली तीन ही है जो क्वेश्चन में आता है. So creditors, who are the creditors? Creditors are those from whom we purchase the raw material. क्रेडिटर से हम क्या परचेज करते हैं? रॉ मटेरियल. तो क्रेडिटर हमें वैल्यू करना है रॉ मटेरियल के प्राइस से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड मल्टीप्लाई करना है क्रेडिटर हमें कितना महीने का उधार देते हैं उससे. जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल इज ऑफ 10 रुपीज एक यूनिट, या रॉ मटेरियल सपोज 1 लाख का खरीदा है और हमें 3 महीने का उधार मिल रहा है. जैसे क्वेश्चन में हमें 1 महीने का रॉ मटेरियल दिया रहेगा, मतलब रॉ मटेरियल हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा प्राइस, एंड हमें क्या करना है, हमें जस्ट क्या करना है, रॉ मटेरियल के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है द पीरियड गिवन, मतलब कितने महीने का उधार देने वाले हैं उससे मल्टी. सो क्रेडिटर्स किस पे वैल्यू करते हैं? रॉ मटेरियल पे, एंड मल्टीप्लाई करते हैं उन्होंने जितने पीरियड का क्रेडिट दिया. तो ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है दोनों चीज. तो मल्टीप्लाई करने से क्रेडिटर मिल जाता है. एंड देन वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम कैसे वैल्यू करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम वैल्यू करते हैं एक्सपेंसेस के प्राइस के साथ जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा. कौन सा एक्सपेंस अभी तक हमने पे नहीं किया? जैसे लेबरर है, उनको वेजेस नहीं दिया, लेबरर्स है उनको वेजेस नहीं दिया है 1 महीने का, 2 महीने का. तो जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, वैसे हम क्या करेंगे, वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्टिकुलर एक्सपेंस इनटू पीरियड ऑफ ड्यू. जो भी एक्सपेंस है, सपोज वेजेस है, कितना महीने का आउटस्टैंडिंग है? 1 मंथ का. तो वेजेस को मल्टीप्लाई करो इनटू 1, जो हमें क्या मिल जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मिल जाएगा. हमें क्या मिल जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मिल जाएगा. नाउ लास्ट वन, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स. कस्टमर से जो हम एडवांस लेते हैं, सेल करने से पहले एडवांस लेते हैं, तो ये अमाउंट नॉर्मली क्वेश्चन में रहेगा. तो हमें डायरेक्टली करंट लाइबिलिटी में लिखना है, बिकॉज ये करंट लाइबिलिटी है. हमने एडवांस में गुड्स लिया, एडवांस में पैसा लिया है डेटर से, डेटर से एडवांस में पैसा लिया है. So this will be given in the question. We directly have to just write the answer. Directly we will have to just write it in the current liability. Advance from customer means customer से जो advance लिया, this should be given in the question like cash bank balance. क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें डायरेक्टली क्या करना, नॉर्मली गिवन इन द क्वेश्चन. नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालना है? क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें जस्ट ये डायरेक्टली कहाँ लिखना है? करंट लाइबिलिटी में. मीन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट लाइबिलिटी में 2 ही चीज है, क्रेडिटर मटेरियल से कैलकुलेट करना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है, एंड इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एंड कितना मंथ के लिए ड्यू है वो भी दिया रहेगा. तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, हम लोग को वो एक्सपेंस लिखना है, कितना मंथ का ड्यू है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. जस्ट मल्टीप्लाई करना है, हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आंसर आ जाएगा. So that way we will have to do. So with this
this slide is done. This explanation for today is done.